Hello friends, welcome to our tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about April 2021 related current affairs. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, CJ, SSCGL and other competitive examination point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So guys, let us we talk about 16th of April 2021 related current affairs. So before starting this, let us we talk about some important news headlines related to the 16th of April 2021. So today's first important news headline is to honor B.R. Ambedkar, Indian American congressman introduces resolution. On 14th of April, India celebrated the 130th birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. In the US House of Representatives, an Indian American congressman has introduced a resolution for the second consecutive year to honor Bhimrao Ambedkar, the architect of India's constitution, on his 130th birth anniversary. हमें पता होना चाहिए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को सम्मानित करने के लिए भारतीय अमेरिकी कांग्रेस ने पेश किया है प्रस्ताव। भारत ने देश भर 14 अप्रैल को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी ने अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मानित करने के लिए लगातार दूसरे वर्ष एक प्रस्ताव जो है पेश किया है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज मेंटल हेल्थ डिजिटल प्लेटफॉर्म और मानस लॉन्च्ड। द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर to Government of India virtually launched the Manas app to promote well-being across age groups. प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने वर्चुअली किया मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल प्लेटफॉर्म मानस को लॉन्च। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी आयु वर्गों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए मानस ऐप लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है, मानस ऐप फॉर mental health digital platform. Next important news headline of today's is HGCO19, an mRNA vaccine candidate. An additional government funding has been received by India's mRNA-based COVID-19 vaccine candidate HGCO19 for its clinical studies. This funding has been awarded under the Mission COVID Suraksha. भारत सरकार ने HGCO19 वैक्सीन के नैदानिक अध्ययन के लिए मंजूरी की अतिरिक्त राशि। भारत ने mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट HGCO19 के नैदानिक अध्ययन के लिए अतिरिक्त सरकारी राशि जारी की है। यह राशि मिशन कोविड सुरक्षा के तहत प्रदान की गई है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है, HGCO19. So guys, now let us we talk about 16th of April 2021 related current affairs. So today's first question is, किस देश में सिरोजा चक्रवात में तबाही मचाई गई है? In which country the Siroja cyclone devastated? So answer is country Australia. Important है, हमें याद रखना है, सिरोजा चक्रवात जो है ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज राइटर्स के मुख्य संपादक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the chief editor of Reuters? So answer is Alessandra Galloni. Important है, हमें याद रखना है, Alessandra Galloni is appointed as the chief editor of Reuters. Next question, question number 13 is किस देश में स्वेज नजर और स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एयर गिवन शिप को जब्त कर लिया गया है? Which country seized ever given ship after blocking the Suez Canal? So answer is country Egypt. Important है, हमें याद रखना है, मिस्र देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया गया है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज
किस राज्य में कोविड-19 मामलों को घटाने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है? विच स्टेट ऑफ इंडिया implemented weekend curfew to decrease the COVID-19 cases? So answer is state Delhi. Important है, हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश के बाद अब दिल्ली में भी जो है कोविड-19 मामलों को घटाने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज श्रीलंका सरकार ने IS सहित कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है? द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका बैंड मैनी रेडिशियल और रेशियल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग IS. सो आंसर इज 11 और 11 इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज किसने वर्ष 2021 में भारत में मानसून बेहतर करने की घोषणा की है? Who declared better monsoon in India in the year 2021? So answer is SkyMet organization. Important है, हमें याद रखना है। SkyMet organization declared better monsoon in the year 2021. Next question number 7 is भारत ने कोरोना वायरस की कौन सी तीसरी वैक्सीन की आपातकालीन उपयोग की घोषणा की है? By what year did the UAE or United Arab Emirates announce sending its rover Rashid to the moon? So answer is year 2022. Important है, हमें याद रखना है। और वैक्सीन का नाम हमें भी पता होना चाहिए, स्पुतनिक V. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है और हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा है। सो आपने अगर कल का वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज UAE ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अपना रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है? बाय व्हाट ईयर डिड द UAE और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अनाउंस सेंडिंग इट्स रोवर राशिद टू द मून? सो आंसर इज ईयर 2022. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज पुंथडू या तमिल नव वर्ष कब मनाया गया? व्हेन वाज पुथड़ू और तमिल न्यू ईयर सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 14th of April. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है 14 अप्रैल को जो है पुंथड़ू या तमिल का नया वर्ष मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज भारत सरकार ने किस नाम से मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इन विच नेम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द मेंटल हेल्थ डिजिटल प्लेटफॉर्म? सो आंसर इज मानस. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि mental health digital platform organized by the government of India is now known as Manas. Next question number 11 is NCSC के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? Who launched NCSC's online grievance management portal? So answer is रविशंकर प्रसाद. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? When World Art Day was celebrated? So answer is 15th of April. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। विश्व कला दिवस जो है 15 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज ICC ने किस देश के पूर्व कप्तान हित स्ट्रिक पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया है? ICC imposed 8-year ban on former captain of which country health streak? So answer is Zimbabwe. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी और पूर्व कप्तान हित स्ट्रिक पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो वो 8 साल तक ICC में जो है शामिल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज महाराष्ट्र राज्य में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कितने करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई है? How many crores of rifle package announced for the weaker section people in the state of Maharashtra? So answer is 5476 करोड़ रुपीस. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। And capital of state Maharashtra is Mumbai. Next question number 15 is Infosys कंपनी ने मार्च 2021 तक कितने करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ लिया है? Infosys कंपनी earned a net profit of how many crores till March 2021? So answer is rupees 5078 करोड़ रुपीस. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। इन्फोसिस कंपनी वेरी फेमस कंपनी इन इंडिया, इन्होंने मार्च 2021 तक जो है 5078 करोड़ रुपए जो है अर्जित किए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग क्लाइमेट चेंज लॉ फॉर फाइनेंशियल सेक्टर्स? सो आंसर इज न्यूजीलैंड. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. न्यूजीलैंड country become the first country to bring the climate change law for financial sector. Important है, हमें याद रखना है. Next question number 17 is the last question today. किसने अमेरिका प्रतिनिधि सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को सम्मानित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है? Who introduced a motion to honor Dr. B.R. Ambedkar in the US House of Representatives? सो आंसर इज आर.ओ. खन्ना. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. जैसा कि हमने फर्स्ट जो है अपनी न्यूज़ हेडलाइन पढ़ी है, इसमें इंडियन अमेरिकी कांग्रेसी की बात की गई है, तो उनका नाम आर.ओ. खन्ना है, जिन्होंने दूसरे साल जो है लगातार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती पर जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता या भारत के संविधान के जनक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को जो है याद करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है आर.ओ. खन्ना और रो खन्ना. सो गाइज, आई होप आपको आज के वीडियो से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आज से रिलेटेड वो हमने सारे डिस्कस करे हैं. सो आप इन्हें बारी बारी से लिखिएगा और याद भी करिएगा. और आप जो है क्विज के लिए टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं. टेलीग्राम का नंबर आपको लिंक में भी मिल जाएगा. और अगर आपको आज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. सो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ. सो गाइस, आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. सो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ. और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं. सो अवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9424570979. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. योर सपोर्ट इज अवर पावर. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद.